الحمدللہ لگ بھگ 95% مڑوا کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ سیاسی وجود ہم نے تیار کرنا، سیاسی وجود جو ہمارا اکھڑا ہوا ہے اس کو اب بحال کرنا ہے اور ہم نے اپنا سیاسی وجود پانا ہے۔ آج سالانہ رپورٹ آپ کے سامنے پیش کرنے آیا ہوں۔ جانتے کیوں ہیں؟ جانتے کیوں؟ کیونکہ میں اپنی قوم کو کچھ سکھانا چاہتا ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ شیخ ظفر ہمیشہ آپ کے سروں پہ سوار رہے، ضروری نہیں ہے کہ شیخ ظفر ہمیشہ آپ کا لیڈر بنا رہے، ضروری یہ ہے کہ جو آنے والے لیڈرز ہوں گے ان کے لیے ایک سبق رہے گا کہ سال کے بعد اپنی عوام کے بیچ آنا ہوتا ہے اور سچ اور جھوٹ کو کھلے آسمان کے تلے بیان کرنا ہوتا ہے، اور یہ سبق ہمیشہ کی طرح رہے گا۔ اور آنے والے جتنے بھی لیڈر نمائندے ہوں گے آپ کے، ان کے لیے ایک سبق رہے گا کہ نہیں، ووٹ لے کر بھاگنا نہیں ہوتا ہے، ووٹ لے کر چھپنا نہیں ہوتا ہے، ووٹ لے کر عوام کے بیچ آنا ہوتا ہے۔ اور جب عوام کے بیچ آپ کھلے آسمان کے طرح اپنی بات رکھتے ہیں تو یقیناً اس سے عوام سچ سے اور جھوٹ سے آگاہ ہو جاتی ہے۔ وطن تمہارا ہے، وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے اے نادانو، اسی پر زندگی سمجھو، اسی پر زندگی مارو کہ مڑوا سے باہر تمہارا کچھ نہیں یارو، ہمارا کچھ نہیں یارو، تمہارا کچھ نہیں یارو۔ ہندوستان آج کا نہیں آزاد ہوا ہے، 1947 سے آزاد ہے۔ آزاد ہندوستان میں، جمہوری ہندوستان میں جموں کشمیر ایک خوبصورت راجیہ ہے، اور اس خوبصورت راجیہ میں خوبصورت سب ڈویژن ہے جس میں 3 علاقے پڑتے ہیں، مڑوا، واڑوان اور دچھن۔ لیکن پورا کا پورا سب ڈویژن سڑک سے محروم ہے، بجلی سے محروم ہے، ٹیلی کمیونیکیشن سے محروم ہے۔ اور میں آج یہاں پر پرانے مغل مسلوں کے آنسو پوچھنے نہیں آیا، بلکہ اپنی عوام کو کچھ خوشخبریاں سنانے آیا ہوں۔ آپ کا یہ جوش، آپ کا یہ ولولہ، آپ کا یہ نظریہ ہی آپ کے لیے مستقبل سنوارے گا۔ مڑوا کا مستقبل آپ نے میرے ہاتھوں میں دیا۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جن دشواریوں سے آپ 70 سال سے دوچار ہیں، آنے والے سالوں میں آپ دشواریوں سے نکل کر آئیں گے انشاءاللہ۔ جب ظفر اللہ اس قوم کے ساتھ بے ایمانی کرے گا، ظفر اللہ کا نام نہیں رہنا چاہیے جس طرح ان لوگوں کا نہیں رہا جن لوگوں نے اس قوم کو غربت کی طرف دھکیلا ہے، جن لوگوں نے اس قوم کو سڑک سے محروم رکھا ہے، جس طرح آج ان کے سیاسی پیر اکھڑ کر باہر کا راستہ ان کو دکھایا۔ اگر شیخ ظفر بھی اس قوم کے ساتھ بے ایمانی کرتا ہے تو شیخ ظفر کا بھی وہی حال ہونا چاہیے۔ یہ شیخ ظفر آپ کا چنا ہوا نمائندہ آپ کے بیچ میں یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں نے 3 سال پہلے ایک تحریک چلائی، مڑوا بچاؤ تحریک، پولیس اسٹیشن میں اس کی کاپی آج بھی پڑی ہوگی۔ میں نے ہر جگہ مڑوا بچاؤ تحریک کا نام لے کر مڑوا کے مسئلے مسائل اٹھائے۔ میں نے حکومت ہند اور حکومت جموں کشمیر تک اپنی آواز کے ذریعے اپنے مظلوموں کی بات رکھی۔ میں نے اپنی قوم کو کبھی بھی دھوکے میں نہیں ڈالا، جو کہتا ہوں کرتا ہوں، جو کہتا ہوں کرنے لگا ہوں، جو کہا ہے ہو کر رہے گا، اور مڑوا کے مسئلے مسائل جو ہے حل ہو کر رہیں گے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کی دنیا کا، میں نے 3D مشن 3D میں نے چلایا، THREE3، T stands for ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم۔ وقت کے پردھان منتری شری نریندر مودی جی نے ٹویٹر پہ یہ اعلان کیا کہ I am very much happy that I am connecting Marwa Wadwan Dachan through the telecommunication with the whole world۔ بٹ وہ سچ نہیں ہے۔ ابھی ملک کے گرہ منتری نے ٹویٹ کیا کہ ہم نے مروا وڑون دچن کو کنیکٹ کیا۔ میں اس بات سے بھی سہمت نہیں ہوں
क्योंकि अभी कनेक्ट नहीं हुआ। कम्युनिकेशन की दुनिया के साथ जोड़ने का वादा मैंने आपसे किया था और टेलीकम्युनिकेशन की दुनिया के साथ हम जुड़ने जा रहे हैं। काम लगा हुआ है। 3 टावर मड़वा में 3-4 महीनों के अंदर बने हैं। टावर और बनने थे इसी साल 3। आपन में सामान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। परसों सामान पहुंचाया जा सकता था और रिक्सर के गांव में टावर बनना था, लेकिन मौसमी हालात अचानक से खराब होने की वजह से जब कुलवंत सिंह एक ड्राइवर यहां से वापसी पे उसकी जान चली गई, उसके बाद जियो कंपनी ने इनकार किया यहां आने से। बताओ मुझे, जिस वैली में लिखा है वैली ऑफ डेथ, वहां से रास्ता आपको किसने दिया? और जहां वैली ऑफ लाइफ दक्षिण और मड़वा है, वहां से आपका रास्ता किसने रोका? तरक्की की पहली माह आपकी सड़क होती है और उस सड़क से महरूम रखा गया। आई एश्योर यू, मैं अपनी कौम से ये वादा कर रहा हूं, दिन रात मेहनत मशक्कत कर रहा हूं, जियो कंपनी के साथ कंटिन्यू राब्ते में हूं। जियो फाइबर का काम हाईनन से लेकर दक्षिण की तरफ शुरू हो चुका था। फॉरेस्ट की कोई प्रॉब्लम बीच में आई, उस प्रॉब्लम के पीछे हम लगे हैं। जो ही वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है, इंशाअल्लाह ताला जियो फाइबर का काम भी यहां से शुरू होने जा रहा है। 2022 में इंशाअल्लाह ताला यकीनन मेरा मड़वा, यकीनन मेरा वार्डवन और यकीनन मेरा दक्षिण पूरी दुनिया के साथ जुड़ा होगा। यानी टोटल मड़वा में 11 टावर्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 11 लोगों को रोजगार भी उससे मिलेगा। कितने लोगों को? आज वो हेल्थ फैसिलिटीज, हेल्थ टीम्स, हमारे हेल्थ सेंटर इस बार अपग्रेड हो चुके हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में की इतनी खूबसूरत बड़ी बिल्डिंग आपके सामने है और इंशाअल्लाह ताला अगले साल हम पुराने अस्पताल की बिल्डिंग से नए अस्पताल बिल्डिंग में शिफ्ट करेंगे। एम्बुलेंस दिए वो मैंने किसी एक गांव के लिए नहीं दी, बल्कि उसमें मड़वा का गरीब पेशेंट लिफ्ट किया जाएगा, जिसको एक वक्त में कम से कम 5 से 10 हजार गाड़ी का किराया भरना पड़ता है। ये पीएमओ दक्षिण, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मेरे पास कोई ऐसी पावर नहीं दी हुकूमत हिंद ने। चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचकर मैंने उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इतने मजमे में आज कहता हूं कि बीएमओ दक्षिण को जो पालने वाले लोग थे, उन तक ये खुला पैगाम पहुंच जाना चाहिए कि आप बीएमओ दक्षिण को अब ज्यादा देर तक बना दे नहीं सकते। और डॉक्टर साहिबान से भी मेरी ये गुजारिश है कि वो वही दवाइयां प्रिस्क्राइब किया करें जो अस्पताल में मौजूद हो। और मैंने हर हेल्थ सेंटर का दौरा किया, कहीं एक्सपायर दवाइयां पाई गई तो कहीं लापरवाहियां पाई गई, कहीं मुलाजिम गैर हाजिर थे, कहीं मुलाजिम को बिना ड्यूटी के सैलरी दी जाती है और कहीं मुलाजिम को ड्यूटी करते करते भी उसको सताया जाता है। लेकिन हम मिलकर इन तमाम मसलों के पीछे लगे हुए हैं और इन मसलों के हल की तरफ बढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। रोड कनेक्टिविटी वाया दक्षिण अशन मर्गनस मज हर वही अख नौजवान कुर्बान करो तील सान माजन हेकत कि सान माज रोजन वदमुन। मर्गनस मज गो जुबरी गोड़ई अख बड़ नौजवान, यम लट गो मरीजों का नौजवान। मामलात होते रहेंगे, लेकिन ऐसी जगह से रास्ता क्यों दिया इस इलाके को जिसमें लिखा है वैली ऑफ डेथ कि यपर पकू तो मरियो, मगर यपर 7 किलोमीटर सड़क है टोटल, तपर क्या इसे सपनाश। अपने शेख जफर को अपना नुमाइंदा चुना, पहले दिन से लेके अभी तक फॉरेस्ट क्लियरेंस की फाइल के पीछे लगा हूं। मैं अपनी कौम के साथ ये वादा करके चला जा रहा हूं कि फॉरेस्ट क्लियरेंस के पीछे मैं 9 महीने से लगा हूं। चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचा हूं, कमिश्नर सेक्रेटरी फॉरेस्ट तक पहुंचा हूं, डीएफओ मड़वा साहब की रिपोर्ट पल पल चेक करता आया हूं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों से पूछिए कि कितनी बार ज्वाइंट सर्वे हुई है। जरा कर कह रहा हूं कि जिस जगह से मैं आज ये नारा दे रहा हूं, जिंदाबाद मड़वा, इसी सरजमीन इसी जगह पर किसी दिन आधी रोटी का नारा लगाकर इस कौम को जलील किया था। लेकिन सुन ले वो दरिंदे, सुन ले वो दुश्मन इस कौम के,
जो आज इस चुने हुए नुमाइंदों के पीछे लगे हैं कि कार ये रखना, कार का जेल, कार फंसी, कार ये ऑडियो रखना, मुझे उसमें तो इन पर बदकिरदार यूथ, तरीका सड़क, तरीका मार्गम की सड़क की तरीका दशनी की सड़क, और पामत बनियो, कपाल की सड़क, मैं दूंगा आपको सड़क यहाँ से। फॉरेस्ट क्लियरेंस का 90% काम हुआ है। अल्लाह ताला आने वाले कुछ ही महीनों में या एक आध महीने में इसकी आपके पास फाइनल रिपोर्ट पहुंचेगी और आपको फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी ये एमन बिजली के दफ्तर मज गोस तो बिजली जरूरत वन में साहिबा तो पजे बिजली जरूरत मतलब ये कौन सी बात कर रहे हैं आप साहब। दपन क्योंकि आपके इलाकों से तो आज तक कोई हमें बिजली मांगने आया नहीं, अगर बिजली ये हक था हमारा तो इस भाई बिजली न होने की वजह से कितनी बेरोजगारी रहती है और बिजली के आने के बाद रोजगार किस तरह से बढ़ता है। शिराका कंपनी के हाथ में 10 करोड़ का काम दिया, अस्तन गांव में रिसीविंग स्टेशन बनाना था, लेकिन कंपनी का पैसा वापस भी गया। अस्पतालों में रिसीविंग स्टेशन ये मालूम ये कौन किसके हैं ना वायरस बनियो काम में पता चला 10 करोड़ पैसा आया, लेकिन 10 करोड़ तब तक इस्तेमाल नहीं हुआ जब तक न वो वापस। इस बार 33 केवी टावर लाइन हमने यहां से सैंक्शनिंग की जो डीपीआर कंप्लीट होकर सामने पेश कर दी गई है। जब किश्तवाड़ में पावर मंत्री सेंटर के आए थे उनके हाथों भी हमने मेमोरेंडम दिया हमने। और ये बात भी आपको बताना चाहूंगा कि मरियो हाउस कनेक्टेड वाड़वा तो मरवा उस बहुत बिजली से थे अगर तो कनेक्टेड छू तेरे को दिया और जियो वर्ल्ड मेहनत करे कोविड के होते हुए भी इन इलाकों में आए। दफन जफरला ने कहा दिए, ये तो भाजपा वाले बोले हमने दिए, एमसी वाले बोले हमने दिए। पहले आप दोनों तय करो किसने दिए। तनपत भूषण मैंने नहीं दिया था जो कि सरकार है, लेकिन आपका चुनावा नुमाइंदा उस तरह का होना चाहिए जो उनको यहाँ लाए, उनको यहाँ लाया, अपने साथ बिठाया, उनके दिलों में जो डर था इस इलाके को लेकर उसको भगाया और उनको घर जैसा फील कराया। जब उन्होंने इलाकों के मसले मसाइल फिर देखे, फिर उन्होंने कहा कि वाकई में आपके यहाँ जियो का काम होना जरूरी है। और बिजली RDSS स्कीम के तहत डीपीआर सैंक्शन हो चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर के अंदर फाइल सबमिट हो चुकी है और विद इन नो टाइम इसकी भी आप खुशखबरी सुनेंगे। मरवा इलाके के दुश्मनों के लिए मेरी खुली मैं ये खुले दावे के साथ कहता हूं, जाओ जिस दफ्तर में जाओगे मेरा कागज गुम नहीं कर पाओगे। 7 DDC अशुन बज नहीं का मैं दफन तिल गए पार्टी आ सही असल में शिम चाहन ये गसीर अशे तिल सजा दफ्तारी है इस खालान पद दबास भाई जो आजाद खुद होगा वही गुलाम को आजादी दिला सकता है। इधर जब मैं कथियार अगर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एक कारकुन बनने गया, आपके कहने पर भी ये मैं वसूख से कहता हूं कि ये आपके लीडर को कभी लीडर बनने इन्होंने लाख कोशिशें की। 35 दुकान पर नहीं बोल रहा हूं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में मुझे न्योता नहीं मिला कि हमारी पार्टी के साथ ज्वाइन करो? दिया। क्या जनाब गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब ने मुझे फोन नहीं किया कि आओ इंद्रवाल में लोग आपको सुनना चाहते हैं? मैंने कहा ये कांग्रेस की रैली है, शेख जफर आजाद है, मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा अगर लोग सुनना चाहते हैं तो लोगों को मैं अपनी आवाज सुनाने के लिए खुद आ जाऊंगा। और आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं छात्रों और मुगल मैदान के लोगों को, जिस नौजवान के लिए तुम्हारी धड़कनें धड़कती है, जिस नौजवान के लिए तुम्हारा दिल धड़कता है,
وہ नौजवान तुम्हारे पास जरूर पहुंचेगा और तुम्हारी बात सुनेगा, तुम्हें अपनी बात सुनाएगा। कि वॉल बाउंड्री वॉल सेंक्शन कराई, ये इदारे पहले बाहर तो बच जाए, ये दांत की वजन होती तो शुरन कहीं कुछ का ये बात है। हाँ, उसके बाद प्रपोजल गए 2 एक्स्ट्रा हायर सेकेंडरीज के लिए, क्योंकि दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। 1984 में देहरना का स्कूल हाई स्कूल बना, लेकिन अभी तक अपग्रेड नहीं हुआ। जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब किश्तवाड़ आए, मैंने उनसे बात की, उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप किश्तवाड़, आप जम्मू आइए। फिर जम्मू जाकर मैं उनसे मिला और उन्होंने यकीन दिहानी दी कि हम आपके 2 हाई स्कूल्स को अपग्रेड करेंगे। हायर सेकेंडरी में जो बड़ी अचीवमेंट होगी हमारे लिए। और यमशन नेशनल कॉन्फ्रेंस सजा सभी हायर सेकेंडरी बोर्ड खड़े पत्र बोन यम ये बोर्ड खच पतवाल तमन बोन इंशाल्लाह काम के सुबह इसका फिर खच मगर बोन वैसे। उसके बाद एजुकेशन का ये मसला है, यहाँ कॉलेज की बिल्डिंग का काम स्टार्ट हो चुका है, आपने खुद भी देखा होगा। और उसके बाद पीएचई का मसला है। जल जीवन मिशन के तहत करीब 6-7 पंचायतों के टेंडरिंग हो चुके हैं, ये छोटी बात नहीं है। 70 साल के बाद पौसर के उन लोगों को पीने का पानी साफ मिला। रिचल मोतुस पतमिला के दुख मोई गए कोई सोर दोबा ना तो सीधे पचुत करोड़ में लाओ तो खेलू घर में पाइपलाइन है ना लगे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये पहला वादा है मेरा आपके साथ कि तो क्वालिफिकेशन मोई मैंने कम से कम एक पहल की बुझो तो कि पहला जार पार करें वो जिम्मेदार थी लोगों की बात नहीं। मुझे खबर क्या मे पाई पानी जब मैं क्या मे पाई अत चीज ये पे मकान हेन रुकत सह मे ईमान ईमानदारी बे दौर दूर करान। और गो पृछो पाइप लाइन योत तम बुनविल मोलस खोत आब वोट तो वो दिमो घर पर घर के मगर तो वातनो कम से कम कोर बचन मांग निश। गुलाम नबी मलिक पैरगाम, जिनका सवाल है कि आपने तहरीक मड़वा बचाओ तहरीक किस बुनियाद पर शुरू की। मड़वा बचाओ तहरीक अपने आप में पता चल रहा है कि ये किस बुनियाद पर है। अशु मड़वा बचाओ, अशुन कश्तवार बचाउन, नच सजा सभी कुर्सी बचावी और नच टाक सभी कुर्सी बचाओ। ये मड़वा बचाओ तहरीक ये गई तेरे वजूदस मजा ये डैम आओ और डैम बाद तिशुन पूर्व में डैम 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 ये क्या उनके रोजो एयरफोन लागो तो बोझो ये डैम मसल सियासत कैंसल कैसे हमने पहले आपने मुद्दा उठाया है कि डैम योतान कैंसल कैसे, उसके बाद हम ये मुद्दा नहीं उठाएंगे क्योंकि आपने पहले लिखा था मैनिफेस्टो में तब उसके बाद हम नहीं उठाएंगे। तोसीफ साहब का सवाल है कि तब तक नहीं उठाएंगे। देखिए मुद्दा है और मैंने अब वही लाल को हर वक्त खुदना दी हो तुम जब यहाँ पावर मिनिस्टर आए उससे भी मैं मिला, मैंने उससे भी कहा। जब दिल्ली हम गए इसी इलाके के लोग उस वक्त भी गए, मैं भी उसकी तर्जुमानी कर रहा था। सुनील शर्मा ने जब मेमोरेंडम लिखा मैंने चेंज कराया, उस बात की गवाही यहाँ के वो लोग देंगे जो मेरे साथ थे। और ये लड़ाई इशू जो है इसको पॉलिटिकल भी नहीं बनाना है बल्कि ये एक समाज का इशू है। हम हर सतह पर इसकी